और रही इन बातों की युक्ति, ये युक्ति तो चलता हुआ है शुरू से, शैतान जो है ये करता हुआ है। इसने आसमान के अंदर खुदा के तख्त के बगल में जाके इसने ये युक्ति चली, तो परमेश्वर ने इसे आसमान से जमीन पे फेंका। तो कितना भी कर ले, यदि हमारे पास ये 6 हथियार हो तो इसको ऐसे कुचल देंगे हम लोग। हम लास्ट टाइम गए थे एंड सचिन सर, अगर पॉसिबल है तो हमें भी दे दिया करो, कभी हमारे चर्च भेज दिया करो। We'll love to have him with us. He's a great man. I'm truly inspired by him. परमेश्वर कैसे इनको इस्तेमाल करता है. Some things that I really loved about today's session and which really spoke to me was careless worship. Recent days में मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, but I got to learn much more and in depth. And I think that's what the Lord wanted me to learn today. Out of all the things that we learned, I believe that was careless worship was the one which spoke the most to me. I was also like, worship leader with careless worship. Sometimes it does happen because क्या पता होता है कि so usually prayer meetings में जाते हैं and then just one Sunday पहले आपको पता, एक घंटे पहले आपको पता चलता है now you're supposed to lead worship. And at those times, those are the times when I'm like, ये क्या है? And it used to be hard for me because जब भी मैं worship lead करता था without preparation, it used to be a hard time for me. जैसे ही घर आता था, repent करना होता था, पश्चाताप, बुरा लगता है. पता है, आराधना जब आप करते हो बिना दिल के as a worship leader, you can see it in the faces of other people when you come without preparation, and you can see it in the face of even yourself. हंस नहीं पाते, खुश हो नहीं पाते. You can give a face smile, but deep within you're empty. And preparation means a lot. And so, yeah, careless worship, that spoke to me a lot. I love that about Sachin sir, the way he puts the word out. पता है कि usually ऐसी teaching हमें मिलती नहीं है हर जगह. So you are so blessed to have sir with you, and I'm so blessed to have sir as my teacher. और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा. जो हमने वीडियो देखा, पहले तो ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, लड़कियाँ लड़ाई कर रही, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. बाद में जब सर ने बताया कि एक लड़की एक ही तलवार यूज़ कर रही थी और दूसरी लड़की क्या कर रही थी, बहुत सारे तलवार इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसे डिफीट नहीं कर पाए. तो बेसिकली मतलब ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर है, चाहे जितने बार भी शैतान कोशिश करे हमें गिराने के लिए, चाहे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिला, कभी लड़की के जरिए, कभी की दोस्तों के जरिए, कभी फ़ोन के जरिए, बहुत सारे. तो शैतान चाहते कि उसके जरिए हमें गिरा दे. इसलिए हमने बहुत कुछ सीखा और एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था. लेकिन वो बेस्ट तो वो था वीडियो जो इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम शैतान को हरा सकते हैं. अगर परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे जितने भी दिक्कतें आएँ, इजी हो सकता है हमें उसे हराना. जेम्स. I am 35 years old. I am not a youth. I don't count myself as a youth. But मेरी ज़िंदगी, my life, I have messed when I was a youth. When I was in my 20s, I have messed it. And one of the biggest reason I would say is when I desperately wanted to get into a relationship. Okay, when Pastor Ji was saying today that we jump into relationship, right? We want things like guys. It feels like the only thing that would complete us is a girl. At least that is something I used to feel just one day before my exam. I was in my 10th, I was supposed to give my boots, but what I was thinking is next year I will have a bike and I will surely try to impress a girl and my life would be set, right? But that messed everything. I would be honest, can I be real? I went to a relationship and before I knew, though I knew that God has been very particular about premarital sex, I was involved in it and that caused my girlfriend to be pregnant. We aborted a child and I regret it like anything. But I cannot go back. But I could have done something is at that time remind myself that God has asked not to go ahead. I should have drawn a line, but I crossed it, and the consequence is that I am 35 years old and I'm still single. I don't feel love. I don't know if I would ever feel it. There are struggles which I have caused to myself. So like Pastor Ji said, like you have to be very careful about your life, the partner you choose to say yes, and I think that should only be after marriage. That's it. And God bless you. जय मसीह की सभी को. मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है. ऐसा लगा कि मैंने जो ज़िंदगी में चीज़ें सोची थी उसकी चीज़ों के मुझे काफ़ी सारे जवाब मिले अपनी लाइफ के अंदर. बाकी मैं परमेश्वर के अंदर आगे और भी बढ़ना चाहता हूँ, प्रचारक करने वाला बनना चाहता हूँ. इन फ्यूचर मुझे परमेश्वर बनाएंगे भी. जय मसीह की सभी. मीटिंग में बहुत अच्छा लगा और जैसे मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं चल रही थी, तो मुझे इस मीटिंग में पास्टर ने जो वचन दिया उस वचन से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. सो
मैं बिलीव करती हूँ मैं आगे भी आऊँगी अगले मीटिंग में भी, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम है। Hello, praise the Lord. This is Arun from Kingdom School, and we are doing theology training here. And I'm so happy, I'm so glad to be here with all other young people. Actually, as Pastor told, I am not young. I am crossing to the other stage. But I like most now, all people have very attentive. They are very receptive. Like they understood. They are very active to listen to the word of God. So I'm so happy that all people are gathered. No, in this generation, the Gen Z kids are so they are different. Their lifestyle is different, but all have come here. They are seeking the kingdom of God. I'm so happy and glad about it. I'll still continue to pray for them all. Praise God. Thank you. जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर की प्रीचिंग बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद सबसे पहले करती हूँ कि हमें प्रभु के दास ने बताया कि हमें साथ जो 6 शैतान से लड़ने की युक्तियाँ हैं उनसे हमें कैसे लड़ना चाहिए, उनके साथ हमें परमेश्वर के वचन द्वारा उनसे सामना करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे पापा पास्टर है और वो हमेशा हम लोगों को बताते थे कि तुम बाइबल पढ़ो, ये करो, लेकिन हम लोग कभी नहीं पढ़ते थे, कभी नहीं उनसे मतलब बाइबल से कभी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लेकिन आज मैंने अभी मतलब बाइबल कॉलेज में मैं जब आई तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, कैसे कैसे हम लोग मेरे मन में ये आता था हम लोग कैसे यहाँ रह रहे, हम लोग अपने घर में कैसे रहते थे, मतलब काफ़ी सारे विचार आते थे। लेकिन आज प्रभु के दास द्वारा मैं ये गवाही देना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि आज उस वचन से मेरे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ा और बहुत मेरे मन को एहसास हो रहा है कि हम लोग अभी तक कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे जीते थे। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आज उस परमेश्वर के वचन में हम इतना मजबूत बने कि आने वाले जीवन में हम स्वर्ग के वारिस हो सकें। पहली बार आई हूँ और मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसे भैया ने सिखाया, विचार के बारे में सिखाया, हमारे बच्चे बड़े होंगे, मेरे बच्चे बड़े होंगे, तो मुझे अभी से ही मौका है उन्हें सिखाने के लिए। और जो भैया ने पिक्चर दिखाई थी यहाँ पे जो भी थी वो रानी लक्ष्मीबाई जो भी थी मुझे नहीं पता उनका सर कटा हुआ था, तो हमें अपने उद्धार का टोप क्या पहन के रखना है। और मैंने जो 6 युक्ति है जो शैतान को हराने की वो मैंने सीखी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने दास के द्वारा बताया कि एकांत में प्रार्थना करनी हमें ज़रूरी है। मैं ये करूँगी। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय। जो टॉपिक में हमें सीखा वो तो अभी भी हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं जो सुबह से अभी तक सीखा वो सब कुछ बताना तो मुश्किल है। लेकिन जो इधर यूथ जो भाई बहन ने जो एक स्किट किया था वो एकदम सरल था लेकिन बहुत पावरफुल था। मैं बहुत उससे प्रेरित हुई। और एक पिक्चर भी था वो। कई बार हम ऐसे करते हैं कि ऐसे हाँ चलाते हैं तो सर पूछ रहे थे कि किसको आता है दरवाजा चलाना, हमें बस साफ चलाना आता है। जब हम सब्जी का कटिंग करते हैं बस वो आता है। और हमें बच्चों को कैसे चलाना है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पीड वो मैंने सीखा। पर्सनली जो मैंने सीखा। थैंक यू सो मच।